अरे तेरा बेबी बड़ा हो गया? So hello, hi everyone. Hope everyone is happy and blessed on your home. Hello. Good morning to all of you. Now it's a good afternoon. Yes, not morning because it's 12 o'clock already. So wait for uploading the lecture. सो आज हमने फिनिश किया था टॉपिक जो मॉर्निंग की क्लास में जो 9 बजे वाली क्लास थी उसमें हमने देखा था कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग हाउ टू रिफ्लेक्ट क्रिटिकली ना। सो क्रिटिकली एस्पेक्ट से हमने उसको बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया और स्टडी किया, जिसमें हमने राइटिंग, रीडिंग और नरेटिव बहुत सारे मॉडल्स भी उसके पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, ठीक है। डिफेंसिव और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स के बारे में पढ़ा, बेनिफिट, बैरियर्स, साइकोलॉजिकल, फिजिकल बैरियर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने बड़ी डिटेल के अंदर जो पढ़ी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे विल टॉक अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ठीक है। Even reflection is the critical thinking is the part of reflection, but in the course content it's a different topic as well. So about we will learn the critical thinking कि critical thinking क्या है, ठीक है। सबसे पहले critical thinking में जाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, first we must know about thinking, then when we will go to explore about critical thinking. So I would like to quote the one quotations of this scientist. ये एक scientist थे जिन्होंने जो है एक बहुत खूबसूरत इस why is imagination is so important. I need input from you. Can anybody tell me? So why imagination is important? Anybody? Please show me your response. Why imagination is so important? Hello. Hello everyone. Can you share your mind at why imagination is imagination is important? So now all of you are stopped. Nobody is answering and don't have an idea about imagination. Imagination क्या होती है? It's a simple word. Every day you are imagining, and you know you are in every areas of your life. You always involve your imaginations, idea, opinion. ठीक है ना? क्या होता है? Mabina, I'm asking you imaginations. ठीक है? I accepted just good afternoon already. So please tell me what is imaginations. क्या है imaginations? Oh God, this bacha. So I would like to quote the one quotations of this scientist is the more imagination is more important than the knowledge. ठीक है? Once your mind is not working appropriately and having no idea and opinion about your own thought and processes,
ठीक है, इमेजिनेशन एनहांस आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ओके, at least someone can reply. So thanks Meera Ashraf. So उसने कहा है आइंस्टाइन के मुताबिक, उसने कहा imagination is more important than the knowledge. Knowledge can get anywhere from the so many resources, but what is your mind actually would like to ask about our idea, opinion, thought involved in thinking. ठीक है, कि हम क्या क्या हमारे ख्यालात क्या opinion क्या है, क्या क्या है जो belief क्या है, ठीक है about. So is the imagination stronger than the knowledge? Of course. ठीक है. So imagination is stronger than knowledge. It is true. Imagination is the highest freedom of all and the one that no one can provide us of. But knowledge is limited to all we know and understand, while imagination embrace the entire world and all there ever be to know and understand. ठीक है. सो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या है. इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोर स्ट्रॉन्गर है देन द नॉलेज. नॉलेज इज वेरी लिमिटेड. समटाइम हम लेस अंडरस्टैंडिंग करते हैं, लेस नोन होते हैं फ्रॉम द थिंग्स अराउंड यू. ठीक है. सो बट इमेजिनेशन इज नॉट कैन नोबडी कैन होल्ड. ठीक है. इमेजिनेशन इज जो है पूरी दुनिया का जो आइडिया है वो हम होल्ड करते हैं इन आवर माइंड. ठीक है. Yes, very good, Aruj Fatma. ठीक है. So that will give you the motivations and keep on you track for better understanding. That is why your participation is very, very important. Even in my class, my habit is to always, having a view and comment from the students so that they can be actively involved in the learning. So while imagination embraces the entire world and all there ever will be to know and understand. कि हम क्या, हमारे चुगिर्द क्या चीज़ें हैं, हम क्या जानते हैं और उनको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं. दिस इज़ द वे ऑफ थिंकिंग हम कह सकते हैं. वेरी गुड. ठीक है. इमेजिनेशन इज़ द वे ऑफ थिंकिंग. क्या हम किसी चीज़ के बारे में क्या सेंस रखते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में, व्हाट इज़ हमारा आइडिया, हमारी ओपिनियन क्या है, थॉट क्या है. ठीक है. सो इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस टू क्रिटिकल
आवाज आई? हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? सभी हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर जो है व्हाट इज थिंकिंग, टाइप ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। हम क्या पढ़ेंगे? पहले थिंकिंग क्या है, थिंकिंग की टाइप क्या है, ये हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? फिर हम पढ़ेंगे जो है क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, बेनिफिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग क्या, बैरियर टू क्रिटिकल थिंकिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिटिकल थिंकर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है? सो वी हैव अ वेरी डिटेल नॉलेज अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. So as we learn about the thinking through the Einstein quotations के जरिए हमने thinking को सीखा है कि ये thinking क्या होती है। thinking हमारा way of mind है, mental pictures होती है, यानी कि जिसके imagination, इसको क्या कहते हैं, imagination कहते हैं, जिस imagination वो चीज़ है जिसके जरिए हम अपनी थिंकिंग को डिस्प्ले करते हैं या मेंटल पिक्चर को डिस्प्ले करते हैं, जिसके जरिए हम अपने वे और आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज कॉल्ड imaginations. And without imagination there is a no thinking. Why does she likes me? There is one questions. Then this is the thing, that thing is involved. And why she does not she likes me and why she doesn't he like me. ठीक है? सो हमने ये इस तरह के क्वेश्चन आस्क, as you start asking question and seek answer, you are in fact thinking. ठीक है? जब इस तरह की चीज़ें आप कर रहे होते हैं तो यू आर गिविंग द कमांड टू योर माइंड एंड ठीक है, सो दैट विल क्रिएट आइडिया एंड ओपिनियन। ठीक है? जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अपने माइंड को कमांड कर रहे होते हैं दैट ही विल फोर्स टू थिंक। ठीक है? तो वो इन चीज़ों के बारे में हमें कोऑर्डिनेट करके थ्रू जो है हम जो जो चीज़ें फिजिकली और जो चीज़ों को देखते हैं, विजुअल सेंसेस से उसको फील करते हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, माइंड जो उसको कोऑर्डिनेट करके फोकस ऑन थिंकिंग, दैट इज द वे ऑफ थिंकिंग. So what is thinking? Thinking is a purposeful, organized cognitive process that we use to make sense of our world. ठीक है? सो थिंकिंग क्या होती है, हमारी पर्पसफुल होती है, जिसमें कुछ थिंकिंग के जो वी आर पर्पसफुली थिंक करते हैं, किसी चीज़ के बारे में थिंक करते हैं, उसका पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये सारी जो होती है दैट आर इन्वॉल्व इन अ पार्ट ऑफ द थिंकिंग ऑर्गेनाइज होती है। और इसमें प्रोसेस कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हमारे थॉट आइडिया जो हमारा, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी के अंदर कि इसके अंदर परसेप्शन मेमोरी होती है। ठीक है? हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है। ये सारा जो आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसके ज़रिए जो है हम सेंस ऑफ दुनिया में जो सेंस करते हैं कि मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड, जिसके ज़रिए हम दुनिया को सेंस करते हैं कि दुनिया में क्या है और क्यों है, उसके एग्जिस्टेंस की क्या रीजंस हैं। ठीक है? तो दिस इज इन्वॉल्व इन थिंकिंग बाय डेफिनेशन इट इज। सब हम बात करेंगे टाइप ऑफ थिंकिंग। टाइप ऑफ थिंकिंग क्या है जी? क्रिएटिव थिंकिंग होती है और क्रिटिकल थिंकिंग होता है। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो जो होती है वो क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और राइट साइड पे क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है, दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजंस मेकिंग में हम यूज करते हैं। लेकिन क्या है, इसमें न्यू आइडियाज डेवलप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एनालाइज करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, रीजंस, यानी कि एनालिटिकल वे से हम चीज़ों को जो है हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी हमारी हायर कॉग्निटिव एबिलिटी इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसमें हम आइडिया को क्रिएट करते हैं, इसमें हम एनालाइज, वैल्यूएट एंड रीजन को फाइंड करते हैं। समझ आ गई इसकी?
शुक्र है। हम बात कर रहे थे कि जी टाइप ऑफ थिंकिंग में हमारी क्या क्रिटिकल थिंकिंग होती है और क्रिएटिव थिंकिंग होती है। ओके, सो क्रिएटिव थिंकिंग में हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनहांसिंग क्रिएटिविटी के एनहांस करने के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दैट इज लाइक दैट इनोवेटिव आइडियाज और जितनी चीज़ें भी होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग से इन्वॉल्व होती हैं। सो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? डिसिप्लिन, इंटेलिजेंट, मेमोरी ट्रेनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल, इंटेलिजेंट, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये इसके अंदर भी ये जो दो पार्ट इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो दे टू पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व। यहाँ पे डिसिप्लिन इंटेलिजेंस साइड पे क्या है? इंटेलिजेंस ही है, मेमोरी ट्रेनिंग है, एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। इसमें मैथमेटिकल है और इंटेलिजेंस ही होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है। सो दीज आर एरिया ऑफ आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अंडरस्टैंडिंग, होप अंडरस्टैंड। ओके, सो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ थिंकिंग में। टाइप ऑफ थिंकिंग इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटीज यू यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, सॉल्व प्रॉब्लम, मेक डिसीजन एंड क्रिएट न्यू आइडियाज। ठीक है। सो क्रिटिकल जो आपकी थिंकिंग है ये कॉग्निटिव एक्टिविटीज है, जिसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, डिसीजन मेक करते हैं, क्रिएट न्यू आइडियाज। ये क्या होता है? ऑल प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन इन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है। सो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज को लीड करता है, जिसमें कौन सी चीजें प्रोसेस हो रही थी? इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिंग न्यू आइडियाज। So you use your thinking skills when you try to make sense of experience, organize information, make connections, ask questions, make plans or decide what to do. So इसके अंदर जो हम देखते हैं कि हम थ्रू जो हम थिंकिंग स्किल्स के जरिए जो है क्या करते हैं? मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, कनेक्शंस को लिंक करने के लिए। क्वेश्चन जब पूछते हैं तो हम क्या करते हैं? एनालिटिकल यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं? एनालाइज करते हैं और क्या करते हैं? एवेलुएट करते हैं। सो ये सारी जितनी भी लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें जब हम यूज करते हैं तो जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वी आर ऑल इन्वॉल्व दिस काइंड ऑफ मेकिंग प्लान और डिसाइड व्हाट टू डू। दिस इज ऑल इन्वॉल्व इन द थिंकिंग स्किल्स। ये हमारी थिंकिंग स्किल है। और क्या प्रॉब्लम है जिसके जरिए, ये कॉग्निटिव प्रोसेस के जरिए ये सारी चीज़ों को हम प्रोसीड कर रहे होते हैं। सो अब हम देखेंगे देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग और वे टू थिंक, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कंक्लूसिव थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, सीक्वेंशियल, लीनियर थिंकिंग, होलिस्टिक नॉन लीनियर थिंकिंग। इस थिंकिंग के जरिए हम ये पहले तो इन सारी थिंकिंग के जो स्टेप्स हैं 8-9 जो है, इनको समझेंगे कि इनके अंदर क्या क्या कौन सी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है और इसमें हम करते क्या है, क्या कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है और इनके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, ये हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग। एज आई टोल्ड यू पीपल दैट क्रिएटिव थिंकिंग इज इनोवेटिव एबिलिटी होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं और अपनी थॉट और ओपिनियन के जरिए जो है हम जो है इसको यानी कि इनोवेटिव वे में जो है आइडिया को जो ऑफर करते हैं, जिसमें रेफर टू द एबिलिटी टू कंसीव न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज बाय ब्रेकिंग फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड थॉट theories, rules and procedures. It involves putting things together in new and imaginative way. Creative thinking is often referred to as thinking outside the box. आप ये यहाँ से देख रहे हैं, इस पिक्चर से भी आपको, बिकॉज शी हैज सो मैनी आइडिया, क्रिएटिव है ना, सो देयर इज सो मैनी आइडिया स्पार्किंग इन योर माइंड, सो देयर इज थिंकिंग इज ऑलरेडी इन्वॉल्वड इन सो मैनी आइडियाज। ठीक है, इसके अंदर जो है सो मैनी आइडियाज। लुक एट द माइंड ऑफ दैट गर्ल, शी इज फुल स्पार्क। ठीक है, आई वाज स्पार्किंग विद आइडियाज। ठीक है, क्रिएटिविटी इसके अंदर बहुत ज्यादा है विद द कलरफुल। ठीक है, पिक्चर्स के साथ आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो इसके जरिए ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके हम जरिए न्यू और इनोवेटिव आइडियाज को ब्रेक करके जो है, यानी कि जो हमारे आइडिया और सेट बिलीव्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, थ्योरी से, ये रूल से जो हमने
क्या सीखे होते हैं उनको हम ब्रेक करके क्या करते हैं, उन प्रोसीजर्स को, रूल को, थॉट को, थ्योरीज को, रूल को उनको ब्रेक करके हम उनको क्या करते हैं, पुट टुगेदर थिंग्स टुगेदर इन अ न्यू वे, और उनको उनसे हमको नई चीज़, अपने नए आइडिया और अपने नए ओपिनियन को शेयर करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑफन रेफर्ड एज द थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, यानी कि एक चीज़ के मतलब हट के किसी चीज़ के बियॉन्ड जाके किसी बारे में सोचना, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग। गुड अनीसा, वेरी गुड हफ्सा जबलून। ओके, एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग एनालाइज, मैंने आपको बताया था कि ये डोमेन में बार बार एक चीज़ को रिपीट करती हूँ कि ये लर्निंग डोमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइल यू आई विल हैव अ लेक्चर्स इन लेटर ऑन, मैं आपका ब्लूम-बेंजमैन की थ्योरी पे भी आपका एक लेक्चर लूँगी जिसमें मैं आपको ब्लूम-बेंजमैन के बारे में सारा बताऊँगी कि उसके डोमेन जो है व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द एजुकेशनल लर्निंग, एकेडमिक लर्निंग में वेरी इंपॉर्टेंट, इवन द प्रैक्टिकल लर्निंग आपको इसका यूज़ देखेंगे कि जब भी आप कोई अपना थॉट को इन्वॉल्व करते हैं। इसके एक्चुअली 3 डोमेन्स हैं, वन इज कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है इसका अफेक्टिव डोमेन, थर्ड इसका साइकोमोटर और है साइकोमेट्रिक डोमेन है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने माइंड से थिंक करते हैं, हैंड से कोऑर्डिनेट करके और इमोशन से फील करके हम ये चीज़ों को अपनी थ्योरी को और अपनी लर्निंग में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जैसे मैं बताया था, रिमेम्बरिंग, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन है, अंडरस्टैंड कॉम्प्रीहेंशन मीन अंडरस्टैंडिंग है, फिर एप्लीकेशंस है, सिंथेसिस है, एवेल्युएशन, एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना, एवेल्युएट करना एंड क्रिएट करना, ये हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। जब भी हमारी रीजनिंग से कोई चीज़ें इन्वॉल्व होती है, हमारी क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में भी हमारी जो है वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग भी होती है और हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है। लोअर ऑर्डर थिंकिंग जो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। मोस्टली हमने देखा प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी ये सारी। लेकिन एनालिटिकल थिंक यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग वो जिसमें हम एनालाइज कर रहे होते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, एवेलुएट करते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। यानी कि इसमें लॉजिकल और जो मैथमेटिकली रीजनिंग और जो है रैशनल थिंकिंग जो हमारी इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं। इस तरह जो एनालिटिकल थिंकिंग है ये भी हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग है जिसमें हम एनालाइज कर रहे होते हैं। यानी कि एक चीज़ को अगर नहीं समझ रहे तो अपने माइंड से हम अपने माइंड को उनको इन चीज़ों के पार्ट बनाकर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे एक पूरी स्टेटमेंट, पूरा एक आइडिया जिसको अपने आप उसको छोटे छोटे पार्ट करके पहले उसको अंडरस्टैंड करोगे, फिर ऐसे उसको होल पुट ऑल पार्ट टुगेदर एंड मेक द कंक्लूजन एंड हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या करेंगे जो है सिंथेसिस, ठीक है। एनालाइज करना, मेक द अंडरस्टैंडिंग इन पार्ट एंड देन पुट सिंथेसिस मीन पुट ऑल टुगेदर एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करें। सो एनालिटिकल थिंकिंग जो है रेफर टू द एबिलिटी to separate a whole into its basic part in order to examine the part and the relationship it involves thinking into इसमें हम क्या करते हैं, पार्ट को जो है एग्जामिन करने के लिए और उनका रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए उनको पार्ट में कर लेते हैं ताकि हम उनका रिलेशनशिप भी और ईच पार्ट को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो हम उनके रिलेशनशिप को भी अंडरस्टैंड करें। इट विल बी इजी टू डिटरमाइन तो एनालिटिकल थिंकिंग। It involves thinking in logical step-by-step manners to break down a larger system of information into its part, ठीक है। तो आप बड़े सिस्टम को तोड़कर उसको क्या कर सकते हो, पार्ट में करके उसके सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करते हो, उनके रिलेशनशिप को भी अंडरस्टैंड करते हो। इट इज एनालिटिकल थिंकिंग। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, जिसमें आपकी क्या है, रेफर द एबिलिटी टू एक्सरसाइज केयरफुल एवेल्युएशन और judgment in order to determine the authenticity, accuracy, worth, validity और values of something. Yes, तो जिसमें हम evaluate करते हैं, जज करते हैं, ठीक है, authenticity को देखते हैं, accuracy देखते हैं, उसकी worth, validity को देखते हैं और valuing something is involved in critical thinking, ठीक है। आप उस पर क्यों है, what है, why है, ठीक है। So why it happen, ये क्या है, that involve in critical thinking. In addition to precise, objective analyze, critical thinking involves synthesis, evaluation and reflection and reconstructions. तो उसने कहा कि इसके साथ हम जो बाकी और चीज़ें भी हैं जिसको हम देख सकते हैं, जो डाटा इन्वॉल्व इन क्रिटिकल थिंकिंग इज प्रिसाइज करना किसी चीज़ को,
उसके ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज करना, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व सिंथेसिस, जैसे मैंने बताया था, इसको भी वी आर टेकिंग इट एज अ क्रिटिकल थिंकिंग, एवेलुएट करते हैं या किसी चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट रादर दैन स्ट्रिक्टली ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन। क्रिटिकल थिंकिंग एक्सप्लोर अदर element that could have an influence on conclusions. समझ आ गई इसकी कि क्या है? अंडरस्टैंड? क्रिटिकल थिंकिंग की समझ आ गई बच्चों? अब हम बात करेंगे कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग क्या है? रेफर टू द एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड अप्लाई फैक्चुअल नॉलेज। इट इज अबाउट थिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और आइडियाज a specific item rather than as a theoretical representations or of a more general concept. It involve thinking only on the surface, always literal and to the point. ठीक है, ये जो कंक्रीट थिंकिंग है, ये कौन सी नॉलेज है जिसमें हम फैक्चुअल यानी एक्चुअल जो नॉलेज होता है जिसमें हम यूज करते हैं कॉम्प्रीहेंड यानी कि उसको अंडरस्टैंड करते हैं किसी चीज़ की, यानी कि जो फिजिकल ऐसी चीज़ जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट कहते हैं। किसी कंक्रीट थिंकिंग यानी किसी चीज़ को देखकर आइडिया लगाना। जैसे मैंने आपको टीचिंग लर्निंग के कॉन्सेप्ट में बताया था कि कंक्रीट वो थिंकिंग होती है। जैसे मैंने आपको हार्ट की एग्जांपल दी होगी, मुझे पता है ये बड़ी जो बड़ी पॉपुलर सी मैं हमेशा इसको शेयर करती हूँ कि जैसे मैं आपको हार्ट के बारे में बताऊँ कि हार्ट ऐसा होता है, इसके इतने चैम्बर होते हैं, लेकिन हो सकता है मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से उसके बहुत सारे फंक्शन, लॉजिक, रीजन, रैशनल दे दूँ, लेकिन जब तक मैं आपको दिखाऊंगी नहीं तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। ठीक है, वंस यू विल नो दैट इज हार्ट, दिस इज द शेप ऑफ द हार्ट, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द हार्ट, एंड देन यू इजीली हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अबाउट द हार्ट कि हार्ट ये होता है, इसकी शेप ये होती है, यू विल रियली कम टू नो, आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। तो कंक्रीट थिंकिंग वो होती है जिसके अंदर जो हम ये एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द फैक्चुअल नॉलेज, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अपना आइडिया जो रिलेटेड टू द आइटम जो है हम उसको लर्न करते रादर देन द थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, हम उसको प्रैक्टिकली चीज़ों को देख कर करते हैं ताकि मोर जनरल जो है चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, सो ये जो है दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम इन वी ऑलवेज नॉट लर्निंग ओनली इन द lecturing, there's so many way to think and learn. Abstract thinking can refer to the ability to use concept to make and understand generalization, then relating or connecting them to others item, event or experience. It involves pay attention to the hidden meaning, thus allowing you to observe and understand theories and possibilities. रेफर टू द एबिलिटी टू यूज कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना। जैसे मैंने हार्ट बताया तो हार्ट के बारे में जो मैं बता रही हूँ मैंने आपको फिजिकल फॉर्म में दिखा दिया उसका, तो क्या उसको मतलब एक्चुअल हार्ट दिखा दिया तो दैट मीन इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट। बट अगर उसके बारे में मैंने बता दिया तो वो क्या है, मैंने उसी के साथ भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी एक्सप्लेन कर दिया था कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है। रेफर टू द एबिलिटी टू यूज कॉन्सेप्ट टू मेक एंड understand generalization, then the relating and connecting them to the other item, event, experience. It involves paying attention to the hidden meaning, thus allow you to observe and understand theories and possibilities.
अब हम बात करेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? यानी कि मुख्तलिफ किसी चीज से हट के किसी चीज को देखना, डाइवर्ज करना, ठीक है, डाइवर्ट करके, यानी कि मुफ्त, यानी कि किसी चीज के उल्टी सिमत में देखना, किसी दूसरे एंगल से, डिफरेंट तरीकों से देखना और सोचना, उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंट थिंक डाइवर्जेंट थिंकिंग। रेफर टू द एबिलिटी टू जनरेट क्रिएटिव आइडिया बाय एक्सप्लोरिंग मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन इन एन एफर्ट टू फाइंड one that work. It involved bringing fact data together from the various sources and then applying logic and knowledge to solve the problem and make decisions. ठीक है, it start from the common point and move outward in diverging directions in to involve a wide variety of aspect or perspective. ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, हमने यानी कि एक चीज़ को अपने उसके डिफरेंट मीनिंग्स देखने हैं, आइडियाज़, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, उसके सॉल्यूशंस और एफर्ट को देखना है, ठीक है, ताकि जो है आप जो है बेहतर डिसीजंस कर सको, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको और लॉजिकल नॉलेज को अप्लाई कर सको, ठीक है, जो कि एक पॉइंट से मूव होकर आपको डिफरेंट डायरेक्शन, एक पॉइंट के डिफरेंट आपको पहलू जो है वो आपको बता देगा। कन्वर्जेंट, अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि ये देखें डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है। थिंक ऑल पॉसिबल वेज टू रीच फाइनल सोल्यूशन, यानी कि डाइवर्जेंट पे मुख्तलिफ तरीकों से जाकर हम उसके एक सोल्यूशन को फाइंड कर रहे हैं। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है, थिंक डायरेक्टली फॉर फाइनल सोल्यूशन omitting अदर पॉसिबिलिटीज। उसमें सिर्फ हमने एक अपने पॉइंट को एक पॉइंट पे देखकर हमने क्या करना, डिसीजंस करना, लेकिन डाइवर्जेंट में हमें क्या करना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? Refer to the ability to put a numbers of different piece of or perspective of a topic together in the some organized logical manner to find a single answer. It involves focusing on the finite number of solutions rather than proposing multiple solutions. ठीक है, सो इस पिक्चर्स, दो पिक्चर के जरिए आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपने पढ़ना है सीक्वेंशियल लीनियर लर्निंग। ठीक है, सीक्वेंशियल लीनियर लर्निंग जो है
सो इसमें हम क्या करते हैं कि sequential refer to the ability to process information in orderly prescribed manners. It involves a step-by-step progressions where our response to a step must be obtained before another step is taken. ठीक है. So like in the example आपने यहाँ पे देखा कि आपकी क्या ये है sequential learning है, यानी कि step by step learn कर रहे हैं ना to lead to get success. ठीक है. स्टार्ट है, थिंक, एनालाइज है, प्लान है, ट्राई है, डू अगेन, कीप डूइंग एंड गेट सक्सेस. राइट. आपको समझ आ गई इसकी? सो इसमें क्या हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं फॉर प्रोग्रेशन लर्निंग. ओके. सब हम बात करेंगे हॉलिस्टिक यानी कि नॉन लीनियर थिंकिंग, यानी कि क्या करना है इसको आपने हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव से. हॉलिस्टिक समझते हो ना, ऑल एरियाज को देखना है. ठीक है. उसमें आपने क्या करना था, स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट को लेकर आप सारी चीज़ों को एक पॉइंट के लेकर आप उसको फर्दर सीख रहे थे स्टेप बाय स्टेप उस पॉइंट को, और आप अपनी सक्सेस ले रहे. लेकिन यहाँ पे आपने हॉलिस्टिकली नॉन लीनियर थिंकिंग एवरी एस्पेक्ट से सीखना है. ये क्या, होलिस्टिक व्यू एंड functional perceptions. Have you seen that big elephant? So you need to understand the holistic concept of this elephant. Refer to the ability to see the big picture and recognize the interconnectedness of the various components that form the larger system. It involves expanding your thought process in multiple directions rather than in just one direction, and understanding a system by sensing its part. ठीक है. सो हैव यू सीन दिस बिग एलिफेंट? वंस यू विल नो, आप देखोगे तो बहुत बड़ा है एलिफेंट, तो बहुत बड़ा है. वंस यू मेक इट द पार्ट, आप उसके ईच पार्ट को, सो यू विल मे बी अंडरस्टैंड द होल यू नो पार्ट ऑफ द एलिफेंट. ठीक है. जब आप उसके छोटे छोटे पार्ट को अंडरस्टैंडिंग जस्ट फॉर द कॉन्सेप्शन, आप क्या कॉन्सेप्ट के लिए डाला गया है कि आप किसी भी लार्जर सिस्टम के को जब आपने उसको अंडरस्टैंड करना तो मेक इट कंपोनेंट, वेरियस कंपोनेंट को आप और इसके इंटरकनेक्टेडनेस रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो आप लार्जर सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है. जी समझ आ गई. जुवेरिया मजर एंड मुबीन, महरीन, जुवेरिया. ओके. सो अब हम 4 टाइप अपोजिंग कैटेगरीज ऑफ, अगर हम इसको अपोजिंग देखें तो इसके वर्सेस में देखें, जैसे कंक्रीट थिंकिंग वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. अगर आप इसको अपोजिंग कैटेगरीज में के अंदर देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हम इसको किस तरीके से अंडर कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग वर्सेस डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है. क्रिटिकल थिंकिंग वर्सेस एनालिटिकल थिंकिंग है, एंड सीक्वेंशियल लर्निंग वर्सेस एंड होलिस्टिक थिंकिंग है. ठीक है. सो ये एक्चुअल जो थी 4 टाइप ऑफ अपोजिंग कैटेगरीज है, जिसके अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं. Yes, look at the pictures. Concrete versus abstract thinking. Here the things are hidden. So here is a more abstract form. ठीक है. So these are the two part. One is, आप नजर आ रहा है यहाँ पे आपको?
ठीक है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, कंक्रीट फॉर्म है, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट पार्ट. So concrete thinking referred to the process of comprehending and applying factual knowledge. It involves only those things which are visible and always allowing any individual to observe and understand. वहाँ पे आपको देखा गया कि आप बताएं, इसको ऑब्जर्व करें और आप खुद से बताएं कि इसके अंदर क्या है. यानी कि आपको कुछ चीज़ दिखाई गई है विजिबल, यानी कि वो विजिबल तो है, शो है, बट दिस इज नीड टू इंडिविजुअल लर्न टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड आपने करना. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट गोज बियॉन्ड ऑल the visible and present things to find hidden meanings and underlying purpose. ठीक है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको बता दिया था, आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों का क्या डिफरेंस है और कैसे ये एक दूसरे क्या इनका कंपैरिजन है. इसके अंदर क्या कंक्रीट फॉर्म में चीज़ें और इसके अंदर जो है क्या है. अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड. सो अब हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. अब ये देख सकते हैं, आप ये देखें एग्जाम्पल, अब हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल के साथ. A concrete think जो thinker जो will look at the flag and only see the specific colors, marking and symbols that appear on the clothes. An abstract thinker would see the flag as a symbol of the country or organized. They may also see it a symbol of liberty or freedom. ठीक है, मतलब जो एक जो रिफ्लेक्टिव थिंकर, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकर है, वो उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करेगा. सिंबल क्या है, सिंबल का मतलब क्या है, उसके उसका लिबर्टी और फ्रीडम का जो है, जो उसका जो सिंबल वो किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, वो उसके सारे पर्सपेक्टिव से देखेगा. वो सिर्फ एक फ्लैग को नहीं देखेगा कि एक जो यानी कि उसका कलर ये है और वो इस तरीके से अपेयर होता है, वो कपड़े से बना और इसके अंदर क्या कलर्स हैं, वो विजिबल यानी कि फिजिकल चीज़ों का. लेकिन जो एक इसके एग्जांपल जो है, इसको पढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर आप यू विल अंडरस्टैंड योर ओन वे ऑफ लर्निंग, ताकि आप अपने आप को खुद से रैशनलाइज थिंकिंग के जरिए अपने आप को अपनी लर्निंग को सपोर्ट कर सको, ठीक है, एनहेंस कर सको. सो इसके ज़रिए जो है वी कैन एबल टू ऑर्गेनाइज आर लर्निंग मोर एनर्जेटिक एंड क्रिएटिव एंड क्रिटिकल वे. ठीक है, सो जब हमें ये पता होगा कि अगर हम चीज़ों को सिर्फ देखकर असेस कर लें कि ये चीज़ है, लेकिन वंस वी डोंट नो हाउ टू elaborate the things and we will not able to connect the information and we don't have the right way of informations. ठीक है, look at the abstract thinking and concrete thinking, that things are hidden, but here are the so many thinking is already sparking and having a energy and enthusiasm. Convergent versus divergent, मैंने पीछे भी देखा, think all the possible ways to reach the solutions और think for a final solutions. इसमें हम सिर्फ एक फाइनल सोल्यूशन को लेके स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसेस करके सक्सेस को हम क्या करते हैं, लीड करते हैं.
कन्वर्जेंट वर्सेस डाइवर्जेंट। मेरे ख्याल में 50 मिनट हो गए। लेट मी हैव अटेंडेंस प्लीज, सो वी विल फिनिश लेटर दिस, प्लीज विद मी।
ज़बलून तेरी पीपी मुझे समझ आ रही, तेरी पीपी इतनी पीपी लगाता है ज़बलून। Okay, take care.